حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کا نام رحمت تھا۔ رحمت کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی یا پوتی تھی۔ ان کا نام لیا بنت منشا بنت یوسف علیہ السلام بھی آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ صابر تھے۔ صابر کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر بندوں کا ذکر اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے آپ کی طرف ایسی وحی کی جیسے کہ نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ تو دوستو، ان انبیاء کرام کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ ضرور جا کر دیکھیے گا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے قصے کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال دیا تھا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس ہر طرح کا مال تھا، بے شمار جانور، بہت سے نوکر چاکر، رہنے کے لیے خوبصورت گھر، غرض ہر چیز بے حد و حساب آپ کو دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ اسی طرح آپ بہت زیادہ زمین کے مالک بھی تھے۔ وہ زمین بہت زرخیز اور عمدہ تھی، اس سے اگنے والا غلہ بھی بہت عمدہ ہوتا تھا۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ ان سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت ملتی تھی۔ آپ کے سبھی بچے فرما بردار، خوبصورت اور صحت مند تھے۔ آپ کا شمار اس دور کی مالدار شخصیت میں ہوتا تھا۔ مالدار ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ آپ بے حد درجے نیک اور پرہیزگار تھے، مسکینوں پر رحم کرتے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، بہت زیادہ مہمان نواز اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی شکر گزاری کی وجہ سے اپنے حسد کے باعث آپ علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، ایوب میرا نیک اور شکر گزار بندہ ہے، اس پر تو اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ شیطان نے کہا، یا اللہ، تو نے اسے مال عطا کیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، پھر وہ کیوں نہ تیرا شکر ادا کرے؟ اگر تو اس سے یہ تمام نعمتیں چھین لے تو یہ ہرگز تجھے یاد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان غلط ہے، میرا بندہ ایوب ایسا ہرگز نہیں کرے گا۔ شیطان نے جواب دیا، اگر تو مجھے اس کی مال اور اولاد پر اختیار دے دے تو معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر تیری بندگی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر اختیار دیا۔ شیطان کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مال پر اختیار دے دیا کہ وہ ان کے مال کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی سنت و دستور ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اور آزمائش کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا بھی امتحان لیا۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال پر اختیار ملنے کے بعد ایک ایک کر کے ان کی سب نعمتیں ختم کرنی شروع کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر اس کے سامنے کسی کو چارہ نہیں ہوتا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، آپ کے سارے جانور اچانک ہلاک ہو گئے۔ آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے صبر کیا اور ناشکری کا کوئی جملہ زبان سے نہ نکالا۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت ملنے کے بعد شیطان نے خوشی خوشی اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا، ان کے ساتھ مل کر حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی دریا میں غرق کر دیے۔ اس میں اونٹ اور بکریاں تھی۔ پھر شیطان نے گوالے کا بھیس بدلا۔ گوالا دودھ بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ بہرحال شیطان گوالا بن کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کر کہنے لگا، اے ایوب، تیرا تو سارے جانور دریا میں ڈوب گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اس نے اپنے نفس سے عطا فرمائے تھے اور عدل سے لے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس جملے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ صبر و شکر والا جواب سن کر سخت مایوسی ہوئی اور غصے میں آ گیا۔ وہاں سے وہ واپس چلا گیا، اپنے چیلوں کے پاس آیا اور ان کو حکم دیا، ایوب کے غلے کو آگ لگا دو، کھیتی باڑی سب جلا دو،
शैतान के चेलों ने अपने सरदार के हुक्म की पैरवी की और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के गले और खेतियों को आग लगा दी। जब सब कुछ जलकर राख हो गया तो शैतान आप अलैहिस्सलाम के पास फिर से इंसानी रूप में आया और आपको भटकाने के लिए कहने लगा, अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप यहाँ नमाजों में लगे हुए हैं और उधर आपके सब खेत और बागात जलकर राख हो गए हैं। अब फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शैतान को वही जवाब दिया जो पहले दिया था। अल्लाह का शुक्र है, उसने अपने फजल से अता फरमाए थे और अदल से ले लिए। इसके बाद वो पहले से ज्यादा तवज्जो और इबादत करने लगे। एक बार फिर शैतान को नाकामी का मुंह देखना पड़ा और वो पहले से ज्यादा गुस्से में आ गया। अपने चेलों को हुक्म दिया, अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलाद पर उसके मकान को गिरा दो। शैतान के चेलों ने उसकी हुक्म की तामील की और उनकी औलाद पर मकान को गिरा दिया। उनकी औलाद मलबे तले दब कर मर गई। शैतान ने अब ये खबर आपको सुनाई, अय्यूब अलैहिस्सलाम, तुम्हारे माल मवेशी और खेतियों के बाद तुम्हारी औलाद भी मकान के मलबे तले दब कर मर गई है और तुम अभी तक इबादत में मशगूल हो। इस पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र और शुक्र वाला जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है, उसने अपने फजल से अता फरमाए थे और अदल से ले लिए और इबादत में मशगूल हो गए। शैतान के गुस्से का तो क्या ही पूछना, वो एक बार फिर नाकाम हुआ था। कुछ सोच विचार के बाद शैतान अल्लाह ताला के पास दोबारा हाजिर हुआ। अब उसने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह, मुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन पर इख्तियार दे दे, फिर मालूम होगा ये किस दर्जे के इबादत गुजार हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, मैंने तुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन पर इख्तियार दिया, अलबत्ता उनकी ज़बान, दिल और कानों पर तुझे इख्तियार नहीं, तू ये भी करके देख ले। चुनाचा शैतान ने खुश होकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में मुब्तला कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे सख्त आज़माइश अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर आती है, फिर ज्यादा नेक लोगों पर, फिर जो उनसे कम दर्जे के हों। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश भी बड़ी शदीद थी। मालदारी के बाद मोहताजी, औलाद के बाद जुदाई, जमीन और मवेशियों की कसरत के बाद तंग दस्ती और फकीरी, हत्ता कि आपके जिस्म पर भी बीमारी का हमला हो गया। आप अलैहिस्सलाम पर ऐसी तंग दस्ती के हालात आ गए कि 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी मुश्किल हो गया। बीमारी ने जिस्म को लागर और कमजोर कर दिया, सहारे के बगैर चलना भी मुश्किल हो गया। जो लोग फराकी के दिनों में आपकी खिदमत करना वैसे फख्र समझते थे, एक एक करके सब साथ छोड़ गए। नौकर चाकर इन हालात को देखकर आपसे दूर हो गए। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए सिर्फ आपकी बीवी आपके साथ रही, जिसने इन मुश्किलात हालात में भी हर तरह से आपका साथ दिया। उन्होंने आपके गुज़िश्ता एहसानात और खुशहाली के उन अयाम को याद करके आपकी हर तरह से खिदमत की और आपकी जरूरियात पूरी करती रही, यहाँ तक के क़ज़ाए हाजत के लिए भी वो आपको सहारा देकर ले जाती, फिर वापस ले आती थी। जब खाने पीने के लिए कुछ न रहा तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस खिदमत गुजार बीवी ने लोगों के घरों में मजदूरी करना शुरू कर दी। जब रहमत बीबी मजदूरी के लिए जाती तो आपके रास्ते में शैतान आ जाता और इन्हें वर्गलाने की कोशिश करता और कहता, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें मजदूरी करने की क्या जरूरत है? अपनी जवानी को ऐसे आदमी की खिदमत में क्यों बर्बाद कर रही हो जो ना चल फिर सकता है, ना काम काज कर सकता है? मिस्र में एक से एक दौलतमंद आदमी मौजूद है, छोड़ो इस बीमार शख्स को, मैं तुम्हारा निकाह एक दौलतमंद शख्स से कर दूंगा, इस तरह तुम्हें इज्जत मिलेगी। रहमत बीबी बहुत नेक और समझदार खतून थी, उन्होंने इसकी बातों की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। काम से वापस आकर रहमत बीबी ने घर में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारी बात बताई कि एक शख्स मुझे ऐसे उल्टे सीधे मशवरे दे रहा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर उनको तनबिया फरमाई, खबरदार, उस शख्स से बच कर रहो, वो इब्लीस है, तुम इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इंसान पर उसके दीन के मुताबिक आजमाइशें आती हैं, अगर वो दीन में मजबूत हो तो उसकी आजमाइशों में इजाफा हो जाता है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइशें तवील से तवील तर होती गई। आप इस आजमाइशों में 18 साल मुब्तला रहे। सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया सिवाय आपकी बीवी और 2 भाइयों के। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक आजमाइशों में मुब्तला रहे। करीब और दूर वाले सब ने आपका साथ छोड़ दिया सिवाय आपके उन 2 भाइयों के जो सुबह शाम आपके पास आते रहते थे
सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम सब्र और शुक्र के साथ इस बीमारी को बर्दाश्त करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा वाकया पेश आया कि सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। वो दो भाई जो आपके पास आते थे, एक दिन उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम्हें इल्म है कि सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा गुनाह किया है जो अहले दुनिया में किसी ने नहीं किया। दूसरे ने पूछा वो किया? उसने कहा 18 साल गुजर गए, अल्लाह ताला उनको मुआफ कर रहा है, ना उनको शफा दे रहा है। फिर जब वो दोनों सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए तो दूसरे भाई से सब्र ना हुआ और उसने सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम बोले, जो तुम कह रहे हो मुझे तो इसका इल्म नहीं। हाँ, मुझे इतना पता है कि एक बार मैं दो आदमियों के पास से गुजरा था जो आपस में लड़ रहे थे और अल्लाह का नाम भी ले रहे थे। मैंने घर आकर इससे उनकी तरफ से कफारा अदा किया कि वो अल्लाह का नाम ना हक जगह पर ले रहे थे। फिर सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा हुए, क्योंकि जब अपने भी बेगाने हो जाएं और गैरों की तरह बातें बनाने लगे तो ऐसे में अल्लाह ताला ही वहद सहारा होता है और गमों को सुकून से, दुख को चैन से और जहमत को रहमत से तब्दील कर देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, भला कौन है जो लाचारी की फरियाद रसी करता है, जब वो उसे पुकारता है तो उसकी तकलीफ को दूर करता है और तुम्हें जमीन में जानशीन बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है? सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाकर आपकी तकलीफ को दूर कर दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, अयूब की इस हालत को याद करो जबकि उसने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये बीमारी लग गई है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसकी तकलीफ को दूर कर दिया। अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदों की पुकार हर हाल में सुनता है और कबूल भी करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो साथ आपकी बीवी जाया करती थी और आपको छोड़कर आ जाती, फिर वापस आने में आपकी मदद करती थी। एक दिन असाबे मामूल आपकी बीवी आपको छोड़कर वापस आ गई और इंतजार करने लगी। उधर अल्लाह ताला ने सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, अपना पाँव मारो, ये नहाने का ठंडा और पीने का पानी है। आपने अपने कमजोर जिस्म से जमीन पर पाँव मारा, वहाँ से एक चश्मा जारी हो गया। सवाल ये पैदा होता है, छोटी सी जरब से चश्मा कैसे जारी हो गया? तो जवाब ये है, अल्लाह ताला जब भी कोई काम करना चाहता है तो कुन कहता है और वो काम हो जाता है। इसी तरह पानी का चश्मा जारी हो गया। आपने पानी पिया तो जिस्म के अंदरूनी बीमारियां अल्लाह ताला के फजल से खत्म हो गईं और जब गुस्ल किया तो तमाम बैरूनी बीमारियों से भी अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई। आप इस तरह तंदुरुस्त तवाना हो गए, गोया आप कभी बीमार हुए ही नहीं। जब आप अपनी बीवी के पास पहुँचे तो आपको पहचान ना सकी, हैरान रह गई। उस आने वाले की शक्लो सूरत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। आपकी बीवी ने आप ही से सवाल किया, अल्लाह के बंदे, यहाँ मेरा बीमार शोहर और अल्लाह का नबी अयूब अलैहिस्सलाम था, आपने उसे देखा तो नहीं? सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया, मैं ही अयूब हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा सेहत अता फरमा दी है। आपकी बीवी को यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अरसा बीमार रहने के बावजूद इस तरह अचानक वो सेहत याब होकर उसके सामने आ जाएंगे। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम ने जब ताकीद से बताया कि मैं ही अयूब हूँ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अल्लाह ताला ने जिस तरह आपको सेहत अता फरमाई, इसी तरह आपका मालो औलाद भी आपको वापस मिल गया, बल्कि अल्लाह ताला ने पहले से दुगना आपको अता फरमा दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जिसका उसे गुमान भी ना हो। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है अल्लाह उसे काफी हो जाता है। सैयदना सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है और ये चीज मोमन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे खुशहाली नसीब हो, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो ये शुक्र करना उसके लिए बेहतर यानी अजर का बाइस बनता है। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने सब्र का बड़ा खूब बदला दिया, ऐसा बदला दिया कि आपके ऊपर सोने की टिड्डियों की बारिश बरसाई। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम कपड़े उतार कर गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप पर आ गिरा। सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम मुठियां भर भर कर कपड़ों में डालने लगे। अल्लाह ताला ने आवाज दी, अयूब क्या मैंने तुझे इससे बेपरवाह नहीं कर दिया जो तू देख रहा है? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ ऐ रब, लेकिन मैं तेरी बरकत से बेपरवाह नहीं हो सकता। एक हदीस में है कि सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम के पास गल्ले के दो गोदाम थे, एक में गंदम थी जबकि दूसरे में जौ थे। अल्लाह ताला ने दो बादल भेजे, एक बादल ने गंदम वाले गोदाम में सोने
की इतनी बारिश बरसाई कि सोना बाहर गिरने लगा। इसी तरह जौ के गोदाम में चांदी की इतनी बारिश बरसाई कि चांदी बाहर गिरने लगी। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के अय्याम में एक मर्तबा अपनी बीवी से नाराज हो गए थे। उस वक्त आपने कसम खाई कि मैं तंदुरुस्त होने के बाद इसे 100 बैद मारूंगा। इस नाराजगी की वजह के बारे में एक वाकया मशहूर है कि एक मर्तबा शैतान एक हकीम का रूप धार कर रहमत बीबी के पास आकर कहने लगा, सुना है आपके शोहर बीमार हैं। रहमत बीबी ने उसे जवाब दिया, जी मेरे शोहर बीमार हैं। अब शैतान ने उनसे कहा, मैं आपके शोहर की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रहमत बीबी ने पूछा, वो क्या? शैतान ने जवाब दिया, शर्त सिर्फ ये है, जब इन्हें शिफा हो जाए तो इन्हें इकरार करना होगा कि इन्हें शिफा मैंने दी है, बस इसके अलावा मेरा कोई मुआवजा नहीं। रहमत बीबी इन अल्फाज की गहराई को ना समझ सकी। शैतान इनसे शिरकिया अल्फाज कहलवाना चाहता था। वो एक औरत थी और अपने शोहर की बीमारी से बहुत परेशान थी। सब लोग उनका साथ छोड़ गए थे, इसलिए इब्लीस की ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और आकर शोहर को सारी बात बताई। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आखिर अल्लाह के नबी थे, फौरन सारी बात को समझ गए। ये हकीम दरअसल शैतान मरदूद है। जिस तरह उसने पहले अम्मा हवा पर अपना हरबा इस्तेमाल किया और इनको बहका कर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के समेत जन्नत से निकलवा दिया, इसी तरह अब ये अपना हरबा हम पर आजमा कर हमें नाफरमान बंदों में शामिल करवाना चाहता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रहमत बीबी से फरमाया, रहमत ये शैतान था, अगर मैं तंदुरुस्त हो गया तो इसकी जुर्म की सजा के तौर पर तुम्हें 100 बैद मारूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गुस्सा इसलिए था कि शैतान ने शिरकिया पैगाम दिया था, क्योंकि शफा तो अल्लाह देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। जब आप अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हो गए तो आप अलैहिस्सलाम को अपनी वो कसम याद आ गई। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। उसने अपने साबर नबी के इस मसले को बड़े प्यारे अंदाज में हल कर दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाता है, अपने हाथ में झाड़ू लो, फिर उससे मारो और कसम ना तोड़ो, बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया, वो बहुत खूब बंदा था। यानी झाड़ू मारने से अल्लाह ताला ने 100 बैद मारने की कसम पूरी कर दी। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने सब्र करने वाले बंदे सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुनिया में भी इसका बेहतर बदला अता फरमा दिया और आखिरत में तो उनके लिए बेइंतहा अजर होगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम रूम चले गए, वहाँ इस्लाम की दावत देते रहे। वहाँ 140 साल की उम्र में वफात पाई। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 पुश्तें देखी। आप अलैहिस्सलाम को इलाका हुरान में दफन कर दिया गया। ये हकीकत है, जब कोई बंदा अजियत और तकलीफ पर सब्र करता है, तकदीर इलाही पर रजामंदी का इजहार करता है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसे इस मुसीबत का बेहतरीन बदला अता फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कह दीजिए कि ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान लाए, अपने रब से डरो, जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की है, इसके लिए अच्छा बदला है। अल्लाह की जमीन कुशीदा है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो बंदा मुसीबत के वक्त ये अल्फाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे उसकी मुसीबत का बेहतरीन बदला अनायत करता है और उसे उससे बेहतर चीज देता है। वो अल्फाज ये हैं जिनका तर्जुमा है, हम सब अल्लाह की मलकियत हैं, हम सब उसी की तरफ जाने वाले हैं। या अल्लाह मुझे इस मुसीबत का स्वाब दे और इसके बदले में इससे अच्छी चीज अनायत फरमा।